Good morning class. So we have already completed Sem 1. Now we are going to start Sem 2 with lesson number 5, Movement towards Independence. What were the things that were going on to reach the independence that we have gained. So that is what we are going to see, and that is there in your textbook, page number 31. So starting from Simon Commission, we will go into each topics one by one from the textbook. Okay, so the time period from 1920 to 1947, okay, is considered to be Gandhian age, or you can say Gandhian movement of struggle for independence. How Gandhiji decided the steps and decisions and that reached to the independence, the struggle that he went through. This second stage of national movement of India is the struggle for having constitutional rights. Moreover, it is the struggle for the freedom of India too. मतलब जो नेशनल मूवमेंट्स हुए थे इंडिया में, जो स्ट्रगल उन लोगों ने उस टाइम पे फेस किया to have a constitutional rights, or you can say that was the struggle to get freedom or make India free. This struggle passed through a stream of events. मतलब events एक के बाद एक events हुए. उस events के दौरान जो struggles face हुआ, फिर there was a uniform effect of it. सबका एक uniform, एक जैसा ही effect किस पर हुआ? इंडियन फ्रीडम पर. तो in this chapter what we are going to see, that we are going to observe the effects of the events that took place at that time. So the first one is Simon Commission. So जो माउंटफोर्ट थे, उन्होंने एक कमीशन डिक्लेयर करा था कि वो कुछ एक कमीशन को सेंड करेंगे इंडिया में आफ्टर 10 years that will examine the effects and the operation of the constitutional reforms. जो ब्रिटिशर्स के रिफॉर्म्स हैं, जो डिसीशंस हैं, उसके इफ़ेक्ट को, उनके ऑपरेशंस को, जो बदलाव है इंडिया में, उसको स्टडी करेंगे एंड फॉर इंडिया. बट 2 years लेटर, 2 साल बाद जो गवर्नमेंट में अपॉइंटमेंट, जो कमीशन अपॉइंट की, उसका नाम था साइमन कमीशन, जिसके हेड थे सर जॉन साइमन एंड अलॉन्ग विथ हिम देयर वाज 7 अदर मेंबर्स. और ये जो 7 मेंबर्स थे, दे वर द मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट. उसमें से देयर वाज नॉट अ सिंगल पर्सन हु वाज इंडियन, एंड इंडियंस ने रेकमेंड किया दैट देयर शुड बी अ इंडियन मेंबर, देन ओनली ही विल अंडरस्टैंड द problems and pains of Indian society. But what this Britisher did, they rejected the idea. उन्होंने जो recommend किया था, उस idea को reject कर दिया ब्रिटिशर ने. But what our Indian people decided, they decided to oppose the Simon Commission. So when the Simon Commission, Sir John Simon and 7 other members visited India, they were greeted with, उनको वेलकम किस किस चीज़ों से हुआ? स्ट्राइक्स हुई, प्रोविजंस हुई, स्लोगन्स हुए, जो साइमन गो बैक के नारे लगे, ब्लैक फ्लैग्स को शो किया गया. मीन्स दे वांट, इंडियन पीपल वांटेड दिस ब्रिटिशर्स टू गो बैक, एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? सप्रेस किया उस अपोजिशन को. हाउ डिड दे अपोज? दे डिड लाठी चार्ज. एंड इस लाठी चार्ज में जो लाला लजपत राय थे, जो हेड ऑफ दिस अपोजिशन, जो ये अपोजिशन हो रहा था उसके हेड थे, उनको भी बहुत सारा injury हुई during this lathi charge, and after few months he passed away. So when this news of death of Lala Lajpat Rai reached to Veer Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru, they were instigated. मतलब उनको और गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया? They killed soldiers. Means the people who believed in the British, who are the propagator of British rule. So they killed them. That's it about Simon Commission. Now Nehru Committee. So when Simon Commission came and they faced the opposition, Hindi Wazir
presented a draft of constitution as in Simon Commission, in which it stated that the Indian leaders of all party formulated appropriate constitutions. मतलब जो ब्रिटिश रूल्स के नहीं, इंडियन लीडर्स जो थे उन्होंने अप्रोप्रिएट कॉन्स्टिट्यूशंस को रूल किया, मीन्स डिज़ाइन किया है. तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट नीड्स टू लुक इनटू इट, उनको उसमें देखना चाहिए. बाय अंडरस्टैंडिंग द चैलेंज, पर इस रिपोर्ट के जो चैलेंजेस थे उसे अंडरस्टैंड करके नेशनल जनरल असेंबली जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने नेहरू कमेटी ड्राफ्ट की. और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि हमें कंट्रोल स्टेटस चाहिए, डोमिनेंसी चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट शुड बी गिवन टू ईच एंड एवरी वन, और एडल्ट सफ्रेज मीन्स एडल्ट्स को राइट टू वोट मिलना चाहिए. दिस वर ऑल इंक्लूडेड इन द रिपोर्ट दैट वाज प्रेजेंटेड बाय द नेहरू कमिटी, एंड दैट रिपोर्ट वाज नोन एज नेहरू रिपोर्ट. बट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने उस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया, एंड रिकमेंडेशन मेड इन दिस रिपोर्ट, जो उसमें चेंजेस और जो रिकमेंडेशंस की गई थी कि ये चाहिए, दैट वाज रिजेक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1929. तो मतलब एट द लास्ट व्हाट दिस इंडियन पीपल डिसाइडेड दैट वी विल डिमांड फॉर दी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मीन्स हमें ये वो कुछ भी नहीं चाहिए, वी नीड इंडिपेंडेंस एंड दैट टू कंप्लीट. सो ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ नेशनल असेंबली मेंबर जो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सब कौन थे? एक्टिव नेशनल लीडर्स थे, इंडियन एक्टिव लीडर्स थे, एंड दे वर प्रोपोगेटिंग, वो एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसे प्रोपोगेट कर रहे थे. तो जो यूथ ऑफ इंडिया है वो कभी भी डोमिनेंट स्टेटस नहीं जाता था, वो कंट्रोल स्टेटस नहीं मानता था. दे नीडेड व्हाट? अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस. नेशनल जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके अकॉर्डिंग दे वर रेडी टू डिमांड फॉर अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस. और उसके डिसीशन के बाद 26 जनवरी 1930 जो मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली के, दे टुक अ ओथ ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस. एंड उस टाइम से, उस 1930 से जनवरी 26 को मेमोरेबल डे की तरह कंसिडर किया जाता है. जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस टाइम पे भी रिपब्लिक डे को मेमोरेबल बनाया था बाय इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन दिस डे. मतलब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्प्लीमेंट हुआ था जनवरी 26. टर्न योर पेज. वी हैव दांडी यात्रा फ्रॉम March 12 to April 6. So you might have heard about Dandi Yatra, right? Here Gandhiji started this initiative to stop the salt law, means salt पर जो टैक्स लगता था उसे कैंसिल करने के लिए उन्होंने ये यात्रा की थी. And as a part of civil disobedience. So civil disobedience means when we are against certain law, that is civil disobedience movement. So Gandhiji decided what he will go back to the Dandi village by sea coast and he will break the salt law. मतलब salt पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, because salt is something that a rich and a poor person both uses, right? So there should be no tax on salt. So on the 11th of March evening, what the assembly of thousands people, 1000 लोगों की एक असेंबली हुई जिसमें सत्याग्रह का मैसेज पास हुआ. एंड बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए, नॉन वायलेंस हुआ, गवर्नमेंट ने लाठी चार्ज किए, बट देन ऑल्सो नथिंग स्टॉप्ड. 12th March 1930, under the leadership of Gandhiji, this Dandi Yatra started from the supporters of Harijan Ashram, जो अभी का गांधी आश्रम है. उस आश्रम के लोग जो गांधी जी के सपोर्टर्स थे उन्होंने 12th March 1930 को दांडी यात्रा स्टार्ट की. एंड दे वर सिंगिंग द हाइम्स लाइक वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीठ पर आई जाने रे. So Gandhiji and along with his supporters started Dandi Yatra on March 12th.
and the brave never run away from struggle. The one who runs by seeing the struggle is not brave. This is what Gandhi ji always stated to his supporters. मतलब जो brave होते हैं वो कभी भी struggle से problem से भागते नहीं हैं. जो brave नहीं हो, जो struggle को देखकर भाग जाएं, वो brave नहीं होते. This is what he used to say. This march that started on 12th March was of about 370 kilometer. Okay, so during this Dandi march, in this all the regions that were covered by Gandhiji and his followers, people were like people were explaining, मीन्स जो लोग जिस रीजन से भी ये दांडी मार्च पास हो रहा था, वहाँ के जो लोग हैं उन्हें एक्सप्लेन किया जा रहा था कि सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट क्या होता है और सॉल्ट लॉ जो है उसे ब्रेक करना क्यों इम्पॉर्टेंट है. एंड गांधी जी टोल्ड एट भात जो भात प्लेस है जहाँ पे वो मार्च 29 को पहुँचे, वहाँ पे गांधी जी ने बोला दैट आई शैल डाई द डेथ ऑफ क्रो एंड डॉग, but I will not return to this ashram without attending पूर्ण स्वराज. मतलब अगर मैं मर सकता हूँ एक क्रो, कौवे या डॉग की तरह, पर मैं कब आश्रम में वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं पूर्ण स्वराज का जो सपना लेके यहाँ से जा रहा हूँ वो अचीव नहीं करता. तो जो दांडी मार्च है वो बहुत सारी स्मॉल एंड लार्ज टाउन से पास होते गई, वहाँ पे ये मैसेजेस पास होते गए. जो लोग थे वो वेलकम करने के लिए विलेजेस के रोड्स को क्लीन कर रहे हैं, उन्हें उनका अपने घरों को डेकोरेट किया तोरण से, यानी वो एक तरह से उस सत्याग्रह को अपना सपोर्ट शो कर रहे थे थ्रू ऑल दिस जेस्टर्स. द होल नेशन वॉज एनवेलप्ड इन अ वेव ऑफ सत्याग्रह. मतलब पूरे नेशन में एक सत्याग्रह की लहर थी. The Gandhiji along with his colleague and supporters reached Dandi after 24 days of march, and April 5th 1930 में गांधी जी और उनके सपोर्टर्स दांडी आश्रम पहुँचे. ऑन अर्ली मॉर्निंग ऑफ अप्रैल 6 गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया बाय पिकिंग अप द हैंडफुल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द सी कोस्ट. उन्होंने वो सॉल्ट सत्याग्रह जो था उसे ब्रेक किया, उस सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, और उन्होंने हाथ में हैंडफुल ऑफ सॉल्ट लिया सी कोस्ट से. एंड इन द लाउड वॉइस गांधी जी स्टेटेड आई हैव ब्रोकन द सॉल्ट लॉ. और उन्होंने लोगों को एड्रेस करते हुए, उनसे बात करते हुए बोला, आई बाय दिस इवेंट आई एम अप्लाइंग सॉल्ट टू द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. मतलब मैं इस जो सॉल्ट है उसे इस बिल्डिंग की फाउंडेशन पे लगाता हूँ एज इन द फॉर्म ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. और श्री महादेव भाई देसाई जो थे उन्होंने इस इवेंट को महाभिनिष्करम सा बोला. वेयर जर्नलिस्ट थे, फोटोग्राफर्स, राइटर्स, जो हिस्टोरियंस थे, जो हिस्ट्री लिख रहे थे, वो सब वहाँ प्रेजेंट थे. दैट टू फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड दे हैव रिटन अ रिपोर्ट अबाउट दिस इवेंट in their own magazines, newspapers, and this satyagraha of Gandhiji was taken to all parts of this world. So this movement gathered what a national consequences among people of India. उन सबको एक अवेयरनेस, इंडियन पीपल्स में एक अवेयरनेस आई कि दे कैन डू इट टुगेदर. तो जो ब्रिटिश पीपल थे, पुलिस थी, उन्होंने इसके अपोजिशन में, इसमें जो वो गुस्सा था उनके अंदर, उस गुस्से में उन लोगों ने क्या किया, लाठी चार्जेस की, अरेस्ट किए लोगों को, और जो भी सामने दिखे उन्हें शूट किया. यानी अलग अलग तरह से अपना जो विरोध था वो ब्रिटिश पुलिस ने शो किया. बट इस सब से what didn't change? The change of fighting for the freedom, the thought of the people of India never changed. Whatever this British police did, but that didn't change the thought or ideology of the Indian people. And when this Dandi March was happening,
there were numerous constructive programs happening like foreign goods को boycott करना हो या कोई liquor prohibit करना हो, untouchability को remove करना हो या हिंदू मुस्लिम unity show करनी हो, यानी जो social services हो सकती थी, जो socially जो decisions लिए जा सकते थे as a support to the सत्याग्रह was taken during this Dandi march. So what happened, this breaking of salt law actually brought a national-wide consensus, but it brought fame in the aspect of non-violent struggle. मतलब अगर हम violence के बिना भी struggle करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो एक thought all over the nation spread हुआ. तो प्रोविजन्स हो, प्रोग्राम्स हो, असेंबलीज हो, वो कंडक्ट की गई ताकि हम फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर सके, फॉरेन लिकर को प्रोहिबिट कर सके, हम लिकर मेकिंग को यानी स्टॉप करें, हम रेवेन्यू टैक्स ना पे करें, सत्याग्रह करें ताकि हम अनटचेबिलिटी को रिमूव कर सकें. मीन्स ऑल दिस थिंग्स वर हैपनिंग इन द बैकग्राउंड व्हेन दिस दांडी मार्च वाज हैपनिंग. ओके, so the struggle was hard, but the people never gave for their freedom. On the other hand, what the Britishers were doing, they were doing lathi charge, they were imprisoning the people who were taking part in all this activity, they were destroying people, as a result were destroying railway stations, post office, police stations and government buildings. Means both the things were happening. Few were following non-violence, few were following violence, but they were indirectly going towards the freedom. And under the leadership of Kasturba Gandhi, what happened, the struggle against foreign liquor started. Okay, and then the British government, what they did, they started removing children from government school, which was the major highlight of the movements. Means they decided that they don't want any government services. Now Gandhi-Irwin Pact, means when Gandhiji was called by the Britishers for a round table conference that was related to a constitutional structure. मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना था उसके लिए गांधी जी को ब्रिटिशर्स ने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए इनवाइट किया. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीन्स दे सिट ऑन अ राउंड टेबल एंड डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरीवन हैज़ अ चांस टू डिस्कस. And this first round table conference that was held, and when there was no Congress leader present, so that was incapable, means it was futile. And to recognize with Congress, a pact between Gandhiji and Irwin was made, which was known as Gandhi-Irwin Pact, and in which फ्री कलेक्शन, कोई भी फ्रीली कलेक्ट कर सकता है या सॉल्ट मैन्युफैक्चर कर सकता है जो पर्सन सी कॉस्ट के पास रहता हो. एंड दैट परमिशन ऑफ पीसफुल पिकनिक वर द मेन पॉइंट, एंड दैट इज नोन एज गांधी-इराविन पैक्ट. ओके, और जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें गांधी जी ने वॉज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कांग्रेस, वो एक अकेले कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव थे जिसने ब्रिटिशर ने अलग डिस्क्रिमिनेटिंग पॉइंट्स प्रेजेंट किए, रिलीजियस के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन शो किया, तो गांधी जी वर अगेंस्ट इट. सो व्हाट हैपेंड, द कॉन्फ्रेंस वाज डिसॉल्व, मतलब उसमें से कोई डिसीजन निकला ही नहीं. सो नेक्स्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट. सो जो वर्ल्ड वार की सिचुएशन को मीन्स माइंड में रखते हुए जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी थी उन्होंने जो इंडिविजुअल सत्याग्रह होते थे उसे स्टॉप करने का डिसीजन लिया. और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अटेम्प्ट्स थे कि लोग इंडिया के लोगों को अलग करना क्रिस मिशन से, और जो इंडियंस वर एंग्री एंड डिजेक्टेड, जो इंडियंस थे वो उस बात को लेके गुस्से में थी. देयरफॉर पीपल ऑफ इंडिया नो लॉन्गर हैड फेथ इन द ब्रिटिश रूल, मतलब अलग अलग करने का जो ब्रिटिशर का कॉन्सेप्ट था उससे इंडियन पीपल वर एंग्री ऑन ब्रिटिशर्स. सो वो ब्रिटिश रूल्स से या रूलर्स से अपना विश्वास जो फेथ है वो खो चुके थे.
They assumed that the Britishers do not wish to quit India, and the Indian people thought that these Britishers are not ready to leave India or quit India. Gandhiji advised the people to come out of despair and be prepared to give a new and last fight. तो यानी गांधी जी ने लोगों को, इंडियन पीपल को गाइड किया, उन्हें शो किया कि हमें ये सारे बातों से बाहर निकल कर वी हैव टू बी रेडी, हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा फॉर अ न्यू एंड अ डिफरेंट फाइट, दैट वुड बी अ लास्ट फाइट. तो यानी क्विट इंडिया मूवमेंट का एक रेजोल्यूशन डिसाइड हुआ, वॉज पास्ड इन द जो वर्किंग कमेटी थी कांग्रेस की, उसमें which was held at Mumbai on August 9, 1942. और उस रेजोल्यूशन के लास्ट सेकेंड डे पे गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, इन सब जो कांग्रेस के लीडर्स थे, जो एक्टिव लीडर्स थे, उनको सबको अरेस्ट कर लिया गया. एंड द न्यूज़पेपर्स दैट वर फ्लैशिंग द न्यूज़ ऑफ देयर अरेस्ट वाज आल्सो बैंड. एंड रिलीजियस एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कांग्रेस लीडर्स वर अरेस्टेड. यानी जो रीजन लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कांग्रेस लीडर्स वर्क कर रहे थे उन्हें भी अरेस्ट करा गया. एंड द गांधी जी एंड अदर लीडर्स अरेस्टेड रिजल्टेड इन दी नेशनल वाइड स्ट्राइक. और जब पूरे नेशन को पता चला कि गांधी जी और ऐसे लीडर्स को अरेस्ट किया गया तो क्या हुआ, स्ट्राइक्स हुई. एंड गांधी जी ने बोला, दिस इज़ द लास्ट फाइट इन माई लाइफ and therefore people of India should make all attempt to achieve independence. He gave the slogan do or die. मतलब गांधी जी ने बोला वो उनकी लाइफ की लास्ट यानी फाइट होगी. तो जो इंडिया के लोग हैं उन्हें हर कीमत पर इंडिपेंडेंस गेन करनी पड़ेगी. और उन्होंने उस टाइम पर एक स्लोगन भी दिया, यानी डू और डाई, मतलब करो या मरो. सो दैट्स इट. We will look into the rest of the chapter in the next video. Make sure that you read the lesson properly. If there is any word that you don't understand or you have any problem or doubt, you can ask me. That's it. Thank you.